Hello everyone. Now we'll discuss the application of crystal field theory. This is very important for both IIT JEE and NEET examination. Here, first application to explain whether complex is high spin or low spin. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है और लो स्पिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, लाइगेंड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट एसएल मीन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड प्रेजेंट है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकता है, दैट मीन्स पेयरिंग कैन टेक्स प्लेस। If weak ligand present, then high spin complex can be formed, and in that complex no pairing takes place. So how you identify the strength of ligands? Now that is from spectrochemical series. I already shared a video regarding spectrochemical series. जैसे हाइड्रोजन डोनर सबसे weakest ligand होता है, कार्बन डोनर सबसे हाईएस्ट होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे CO, let NiCO whole 4 tetracarbonyl nickel and similarly NiCl4 minus 2. In these two complex, NiCO4 is low spin complex because CO is weak field ligand and CO is strong field ligand, hence low spin complex takes place, and Cl is weak field ligand, hence high spin complex can be formed. ठीक है, then second application, very important, to explain color property. A reason for color in complexes due to d-d transition. Here in octahedral complex, the 5d orbital split into two sets. One set contain T2g 3 orbital which have lower energy, and another two set orbital contain Eg, that is higher energy. Here example is D1, it is ground state, and this electron gain energy and transist from or transform to Eg orbital, jump to the Eg orbital, that is D to D transition, and this is excited state. Due to this transition, this electron absorbs some energy and this is associated with some wavelength, because you know the formula of the energy, that is E is equal to h nu, and nu is the frequency and nu is c by lambda, that is energy is inversely proportional to the wavelength. And this is color wheel, this is violet, blue, green, yellow, orange, red. The complex which absorb color, and that color is that complex or emit, that is complementary color is the color of that complex. Okay, when d electrons absorb energy from visible region, they will get excited and absorbed energy is related to a particular wavelength. This is color wheel. If the color is absorbed blue, then it will show orange color, that is complementary color of blue is orange. Here for violet, blue wavelength is very small, and from violet to red the wavelength increases. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन ब्लू अगर ऑब्जर्व करेगा तो कौन सा कलर शो करेगा, रेड शो करेगा। येलो ग्रीन अगर ऑब्जर्व करेगा तो वायलेट शो करेगा। कलर मिक्सचर है, दोनों आसपास है, तो ग्रीन ब्लू अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेड कलर शो होगा, येलो ग्रीन अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वायलेट कलर शो होगा। Here for violet, blue, green, this wavelength is very small, and from violet to red the wavelength increases. Okay, for red there is maximum wavelength, and for violet there is minimum wavelength. Here E observed is equal to Sc by lambda observed, and energy observed is directly proportional to the strong ligand and inversely proportional to the weak ligand. अगर strong ligand present है तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रहेगा, weak ligand present है तो एनर्जी कम रहेगा. Similarly, wavelength observed is directly to the weak ligand, inversely to the strong ligand. This example given in NCERT. तो कैसे हम देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे Na वाटर होल 6+2 कॉम्प्लेक्स है जिसका कलर ग्रीन है। जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथाइलिन डाइयामाइन रिएक्ट करता है तो वाटर को रिप्लेस करता है इथाइलिन डाइयामाइन, तो कलर सडनली चेंज हो जाता है पेल ब्लू कलर। En इज बाइलेटरल लिगैंड, सो एक En दो वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सेम कॉम्प्लेक्स पेल ब्लू कॉम्प्लेक्स और एक En के साथ रिएक्शन करता है और दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्प्लेस होता है। इन नेक्स्ट केस वही ब्लू कॉम्प्लेक्स यहाँ पे और एक En के साथ रिएक्शन करेगा तो सारे वाटर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाता है और En के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। देखो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है,
वायलेट के बाद आता है ब्लू, ब्लू के बाद आता है ग्रीन। तो इसीलिए यहाँ पे जब इथाइलिन डायमाइन है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और वाटर का स्ट्रेंथ कम होता है। EN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, ठीक है। तो एनर्जी जो ऑब्जर्व होता है EN का ज़्यादा होगा, वेवलेंथ तो ऑब्जर्व होता है तो वाटर का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए EN का वेवलेंथ कम है, तो इसलिए EN जहाँ पे है वहाँ पे वायलेट कलर शो होता है, वायलेट स्टार्टिंग कलर है, और वाटर जहाँ पे है वहाँ पे ग्रीन कलर शो होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। देन मैच द कॉलम लिस्ट आई लिस्ट वाई। देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है लिस्ट आई पर और लिस्ट वाई में कुछ वेवलेंथ दिया है, हम दोनों को मैच करेंगे। COCN होल 6-3 CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। मैं लाइगेंड का स्ट्रेंथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा CN-। देन आ जाएगा जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल है मैं वो उसके बारे में लिख रहा हूँ। देन NH3 आएगा, देन आ जाएगा वाटर, देन आ जाएगा Cl। हाइड्रोजन सबसे वीकेस्ट होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगैंड CN है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसका वेवलेंथ सबसे कम 310। देन NH3 होता है, देन सेकेंड बार वेवलेंथ कौन सा है 475। देन वाटर है तो वाटर शो करेगा 500 वेवलेंथ। देन Cl है वीकेस्ट लाइगैंड तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ शो करेगा 535। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है, वो बहुत इजी है। फ्लोरीन सबसे वीक लाइगैंड, जो भी एग्जांपल दिया है सबसे वीक होता है, तो इसका वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा 700। तो फ्लोरीन के बाद देन जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा दैट हो जाएगा ऑक्जेलेट, ओके। देन आ जाएगा वाटर, प्लीज चेक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर के बाद यहाँ पे आ जाएगा NH3, देन इथाइलिन डायमाइन, नेक्स्ट इज CN। तो CN सबसे स्ट्रॉन्ग तो सबसे कम वेवलेंथ 310। देन आ रहा EN, तो EN का यहाँ पे आ जाएगा 470। देन अमोनिया आ रहे हैं तो अमोनिया आ जाएगा 475। देन वाटर और ऑक्जेलेट दोनों आसपास, तो दोनों तो 600 दिया है तो दोनों हो जाएगा 600। एंड दिस क्वेश्चन केम इन प्रीवियस ईयर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑब्जर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट लाइगैंड का स्ट्रेंथ लेंगे, तीनों लाइगैंड से NO2 NH3 वाटर। आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में NO2 माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग लाइगैंड होता है, ये तीनों में कंपेयर करेंगे तो। देन आ जाएगा NH3, देन आ जाएगा वाटर। तो इनका एनर्जी ऑर्डर है, बट क्वेश्चन पूछा है वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन। तो एनर्जी का तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, एनर्जी का अगर हम कंपेयर करेंगे तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, बट वेवलेंथ एनर्जी का इन्वर्सली रिलेशन होता है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा A लेस देन B लेस देन C। देन 2022 में क्वेश्चन आया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व हुई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो EN यहाँ पे 2 है, EN स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, EN 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा। EN इज स्ट्रॉन्गर लाइगेंड देन वाटर, ठीक है। तो एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइगेंड्स डायरेक्टली, दैट इज स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स ज़्यादा रहेगा, वीक लाइगेंड्स कम होगा, ठीक है। तो C इज ग्रेटर देन A is greater than B. Then third application, stability of coordination compound. Here center metal act as Lewis acid because it can accept lone pair, and ligands act as Lewis base that can donate electron pair. So both are react to form M-Ln coordination complex. Stability constant is equal to concentration of the product by concentration of reactant. Here stability is directly proportional to the K. If K increases, stability increases. If 1 by K increases, instability increases, that is 1 by K is known as instability constant. The factors affecting stability very important, that is directly to the nuclear charge or oxidation state. If oxidation state increases, then stability of the complex also increases. Then electronegativity of central metal, if electronegativity of central metal increases, then stability also increases. Strength of ligand के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रॉन्ग ligand का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, वीक ligand का स्टेबिलिटी कम होगा। तो स्ट्रॉन्ग ligand स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, weak ligand decreases the stability. If ring formation or chelation takes place, then that complex also more stable, and this I explained in chelating ligand, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ligand ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ligand का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, वीक ligand का कम होता है। एक क्वेश्चन आया था 2021 जेई मेन में, द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन
of CuNH3 4 plus 2 is 2.1 10 to the power 13. The overall dissociation constant is 4 into 10 to the power minus y into 10 to the power minus 14. Then y is y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स 1 by inversely proportional to the stability constant. That is here dissociation constant, okay, dissociation constant equal to 1 by stability constant. Okay, here the solution of that question, dissociation constant is equal to 1 by stability constant. So dissociation constant of this complex equal to 1 by stability constant of this complex, and stability constant given 2.1 10 to the power 13. So 1 by 2.1 10 to the power 13 equal to 5 into 10 to the power minus 14. So y value is 5. Another question came in JEE Main 2021. Here the stepwise formation of CuNH3 whole 4 plus 2 given. So Cu plus NH3 K1 CuNH3 plus 2 CuNH3 plus 2 again NH3 react, constant is K2, that is CuNH3 whole 2 plus 2, whole 2 gives whole 3, this will be printing mistake, that is whole 3, then whole 3 gives whole 4. The value of stability constant K1 K2 K3 K4 all are given. The overall equilibrium constant for dissociation means रिवर्स रिएक्शन. ठीक है, अगर हम रिवर्स रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो पहले तो हम पहले स्टार्टिंग का ये जो रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर लिया. तो ये तीनों को हम अगर ऐड करेंगे, चारों को ऐड करेंगे तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा. तो फॉर्मेशन का वैल्यू आ जाएगा तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 7.90 10 to the power 11 आ गया. फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 1 by K. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 1 by K इक्विलिब्रियम, दैट इज 1.7.90 10 to the power 11, that equal to 1.26 10 to the power minus 12. Hope this video is very helpful for your preparation. Thank you for watching.